Welcome to study with us, guys. Hopefully, we are starting ICSC History and Civics of class 10. Today, I will deal with only the further reduced syllabus. Today, I will teach you only lesson number 1 from the civics. From this lesson 1, only few things, or you can say nothing is cancelled. Everything is important from the Union Parliament chapter. Yeah, from Morningstar book. Okay, let's start. Here it's first tell that the syllabus it is given the Union Legislature, meaning of the federal setup in India. Okay, we will go according to the strictly with the further reduced syllabus. Okay. Before going to this, here it is tells in the book Federal Setup in India. I will tell you in short. Okay, these things you need to remember for general knowledge, not for anything else. Here it is telling that in a federal system of government, all the administrative powers are divided between the central and the state government by the constitution, and both are supreme within their respective spheres. Now it is telling that in our country like India, India's power is divided into two parts. One is state government and one is central government. They will have the power equally. Now it is telling what is the importance of federal setup, means what is the necessity or what will the use of federal setup. India is a large country with 29 states and 7 union territories. It is not possible in India federal system for the states to break away as a separate unit from the Union of India. This is essential for maintaining the unity of integrity of India. I will not go this in details, but I will tell you these things at a short of gist. Okay, importance, why it is importance of a federal setup. Now let's say if a bill pass in the state, the bill will go first to the Lok Sabha, then Rajya Sabha, then President. If President signs, then the bill become an act. Now see, Indian government in 1948 or 49, India government had decided that they will distribute equal powers to central and the state. State have their different powers and central have their different powers. They both have the powers. Like on the schools of the state, like any high school which are in the state and which are government of Britain, government of the state, they are under the government of the state. And like some schools, they are like Kendra Vidyalaya and all these schools, army schools especially, all are under the central government. Like trains, Indian Railway, yeah, I am not missing, it is Indian Railway, it is under central government. And one question one boy asked me that day, एरोप्लेन तुम्हारा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ता है क्या स्टेट गवर्नमेंट में पड़ता है? मैं पहले बोला हूँ उस लड़के को, जो एयरलाइंस ना स्टेट की होती है ना सेंट्रल की होती है. चलिए, we will not waste any time more. This is an useless things, but you should just remember that why federal setup in India. Okay. Now let's come to the directly to the Lok Sabha, means the Union Parliament section. Here the first thing we need to know about Lok Sabha. So do you know what is the another name of the Lok Sabha? Lok Sabha is also called the House of the People. And the members of the Lok Sabha are directly elected by the people of India. I think everyone should know these things. Now term means, what is the term of the Lok Sabha? The term of the Lok Sabha is 5 years.
मीन्स तुम्हारा सिर्फ 5 साल का ही रहता है टर्म लोकसभा का। अभी आ जाओ कॉम्पोजिशन, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स रख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। चलिए देखते क्या है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज provided by the constitution is 552. Out of these, not more than 530 members shall represent the states। मतलब the maximum strength क्या है 552, जिसमें से तुम्हारा सिर्फ 530 मेंबर्स होते हैं स्टेट्स से, और सिर्फ 20 मेंबर्स मतलब ओनली 20 वो यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट किया जाता है। और सिर्फ कोई स्पेशल केसेस में सिर्फ एंग्लो इंडियन मेंबर्स को हम लोग हमारे कम्युनिटी से चूज करते हैं, जो प्रेसिडेंट ही उसको नॉमिनेट कर सकता है और कोई नहीं। और वो सब क्या कर सकता है, यहाँ पर आकर अपना निर्वाचन में आकर अपने जगह के बारे में कुछ बोल सकता है। सेकेंड इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। हमें ये पता है ना लोकसभा के क्वालिफिकेशन, मतलब अगर एग्जांपल समझ लो, मैं एक एमपी बनना चाहता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुझे तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना उस चीज को प्राप्त करने के लिए। मैं अभी वही क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, वो सिर्फ याद रखिए। सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहले ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसको इंडिया का नागरिक होना ही पड़ेगा। दूसरा चीज, ही शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब ऐसा है कि अगर लड़का 25 के ऊपर नहीं होता है तो फिर वो लोकसभा के लिए, मतलब लोकसभा को डिजर्व नहीं करता है। मतलब उसको क्वालिफिकेशन में वो नहीं गिरता है कि 25 एज नहीं हुआ है, मतलब एक लड़का है 18 साल का, वो अभी पागल हो गया है लोकसभा जाने के लिए, वो नहीं कर सकता। आपको पहले 25 होना होगा, 25 ईयर्स ऑफ एज। अभी क्या बोल रहा है, और उसका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए, इसलिए बोल रहा है नंबर 3 पॉइंट, ही शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी क्या बोल रहा है, और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहता है ना, उसको ना कोई भी अदर सोर्स से पैसा नहीं कमा सकता। जैसे अगर सपोज वो स्कूल के टीचर हो, ऐसा कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, वो लोग नहीं हो सकते। पहले अपना वो काम को रिजाइन कर ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। अभी क्या बोला, डिसक्वालिफिकेशन, मतलब हम लोग को पता है ना क्वालिफिकेशन में क्या होता है। हम लोग जब कोई भी टीचर्स से, मतलब कोई भी लड़के से पूछते हैं कि भैया आपका क्वालिफिकेशन क्या है, अभी वो बोलता है मैंने तो MBBS कर रखा है डॉक्टर में। अच्छा भैया, बहुत अच्छा बात है। कोई बोलता है भैया मैंने तो MTech किया हुआ है, BTech भी किया हुआ है, मतलब ऐसा बोलता है, वो वाला क्वालिफिकेशन होता है। अभी डिसक्वालिफिकेशन क्या है, मतलब तुम क्लास 10 पास नहीं किए हो, क्लास 12 अभी तक पास नहीं किए हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम राजनीति में घुस गए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं आता है, तुम सिर्फ क्लास 5 तक पढ़े, यही बात है डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। चलो मैं बोल देता हूँ, यहाँ से आपको मेनली 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑन एनी स्टेट बट नॉट अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन और फॉर अ स्टेट, मतलब वो अगर कुछ भी गवर्नमेंट के अंदर में अगर कुछ काम कर रहा है, फिर भी वो चाहता है MP बनने का, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, तो फिर वो नहीं हो सकता। अगर वो करता है तो फिर वो क्या कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब उसके पास कोई कैपेबिलिटी और एबिलिटी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। सेकेंड है, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसको अच्छा होना पड़ेगा। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, अगर मान लो आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो तो फिर क्या आपको क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ये तो हमको पता है ना, हम सबको पता है। हम लोग जो देख रहा है अभी न्यूज पर, ऐसा भी अब बात आ रहा है, बहुत कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है और वो भी क्या है इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, वो चला जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसा बहुत अफवाह फैला रहता है डे बाय डे यूट्यूब में।
अभी क्या है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इज वैकेशन ऑफ सीट्स. The seat of a member of either house of the parliament becomes vacant in the following situations. Number 1, vacant कब होता है? अगर कोई एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी दुर्घटना में मारा जाए, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, तभी वैकेंट मतलब वो सीट वैकेंट हो जाता है. तो फिर देखते क्या होता है. इफ अ मेंबर रिजाइन्स हिज सीट बाय राइटिंग टू द स्पीकर और टू द चेयरमैन एज द केस में बी, मतलब अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगर वो चेयरमैन को और स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है लोकसभा में, तो फिर वो सीट मतलब उसका जो जगह का जो सीट है ना वो वैकेंट हो जाता है, मतलब खाली पड़ जाता है. दूसरा पॉइंट है, इफ अ मेंबर इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज. ये एक चीज बहुत बढ़िया चीज है. मान लो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आप 60 डेज तक कोई भी मीटिंग्स में प्रेजेंट नहीं हो, लोकसभा के कोई भी मीटिंग्स में प्रेजेंट नहीं हो, तो फिर ऑब्वियसली भाई आपको वो लोग निकाल देगा पार्टी से. यही हम लोग की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इस बुक में बोल रहा है. इस बुक में नहीं, यही इंडिया का ट्रू है और कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रू है. नंबर 2 पॉइंट, वैकेशन ऑफ सीट्स. इफ अ मेंबर इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज. ओके, अभी आ जाता है हम लोग का अगला टॉपिक, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स. ये जो वैकेशन ऑफ सीट्स, क्वालिफिकेशन, इसमें से आपको सिर्फ 4 याद रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा. अगर याद रखते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, आपके जीके के लिए बहुत अच्छा होगा और आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा. पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स आते हैं. अभी पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स, सबसे पहले आपको पता है पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स कितने टाइप से डिवाइड हुआ है, तो फिर देखते हैं. 0 आवर लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर्स, मोशंस, सेशंस, quorum, interpellations, adjournment and prorogation. अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स में देखते हैं. Some formalities which the legislators have to observe in the parliament as well as in the state legislatures are called parliamentary procedures. Some of them. अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसका कुछ पार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट द्वारा. अभी हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर चलो देखते हैं. सेशंस, द प्रेसिडेंट summons each house of parliament. Each house shall meet at least twice a year and the interval between 2 consecutive sessions shall be less than 6 months. Normally there are 3 sessions in a year: the budget session, the monsoon session and the winter session. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम पे. सेशन कितने टाइप के होते हैं, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेशंस, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा. नंबर 1 है बजट सेशंस, जो आपका होता है फरवरी से मई तक. दूसरा है मॉनसून सेशन, जो आपका होता है जुलाई से अगस्त तक. एंड द विंटर सेशन, जो होता है आपका नवंबर से दिसंबर तक. अभी कोरम क्या है, देखिए. The quorum means the minimum number of members required to be present in order to enable the house to transact its business. मतलब अभी कुछ मीटिंग चल रहा है वहाँ पर, तो कुछ मेंबर्स का प्रेजेंट रहना भी चलता होगा ना, तो फिर कैसे मीटिंग होगा. अगर समझ लीजिए यहाँ पर आप स्कूल में हो, स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट है, तो फिर क्या टीचर को क्या मजा आएगा, तो बाकी स्टूडेंट एब्सेंट है, एक स्टूडेंट को पढ़ाकर क्या टीचर को क्या मजा आएगा ब्लैक बोर्ड में? नहीं, तो फिर वो क्लास नहीं हो सकता. तभी ऐसा ट्यूशन में भी होता है, ग्रुप स्टडीज में. अगर 4 जन अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो फिर 3 जन अगर एब्सेंट है और आप प्रेजेंट है सिर्फ, तो फिर क्लास नहीं होगा. अभी क्या बोला, क्वेश्चन आवर. ये एक ऐसा आवर है जब ऑपोजिशन है ना, कोई भी दूसरे पार्टी के से फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकता है. और इस समय में आप ना कोई स्लैंग वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो,
मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सपोज पूछ रहा हूँ अलीपुरद्वार जिला के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट को जॉन बार्ला से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर आपने इन 2 सालों में क्या विकास किया है अलीपुरद्वार जगह का। अभी वो नहीं मुझे गाली दे सकता है, अगर वो गाली देगा तो मुझे पार्लियामेंट के विरुद्ध है। अभी 0 आवर्स में क्या करना पड़ेगा, मैं अगर किसी से क्वेश्चन पूछता हूं वो मुझे आंसर देगा 0 आवर में। अगर मैं अभी पूछता हूं आपको, क्या भाई आपका नाम क्या है, क्वेश्चन आवर में, अभी 0 आवर में आप क्या बोलोगे, मेरा नाम राम है, श्याम है, ये है। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन क्या है सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। So now we will deal with types of motions. So there are mainly 2 types of motions. One is adjournment motion and one is no confidence motion. So सबसे पहले हम लोग जाते हैं adjournment motion क्या चीज है। तो फिर सुनिए, an adjournment motion means a proposal to law aside all other business and take up a definite matter of urgent importance. और no confidence motion क्या है, a no confidence motion is a proposal expressing lack of confidence in the ministry. अभी सुन लीजिए no confidence motion क्या चीज है। अगर मान लो पहले के पूर्व नेता कोई भी एक नाम ले लेता है ना, राम, सपोज लीजिए राम शाह, अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चेन्नई के। अभी मैं उनसे मतलब मान लीजिए मैं एक स्पीकर हूँ और मैं एक चेयरमैन भी, और मेरे साथ में एक चेयरमैन है। अभी हम लोग पूछ रहे हैं उससे क्वेश्चंस, आपने क्या विकास किया है, आपने क्या नहीं किया, और वो ना कुछ नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और उसका जो जगह है ना जहाँ पर वो MP बना है वहां पर ना सिर्फ रोज मारपीट दंगा फसारा बना रहता है। तब स्पीकर उससे नो कॉन्फिडेंस मोशन में उसको मतलब क्या बोले उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी उसको फेंक सकता है स्पीकर। और कुछ वोट वगैरह होता है, ये होता है, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। मुझे अभी तक इंडिया में लोकसभा में ऐसा केस बहुत ही कम हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है ना वो सब क्वालिफाइड होते हैं, कोई भी डिसक्वालिफाइड नहीं है और सबको पता है क्या करना है। इसलिए अभी हो सकता है, ऐसा नहीं है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा। अगर MP को मान लो कुछ नहीं आता है, कुछ वो नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सिर्फ वो कॉमन पीपल के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तभी ये चीज नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू होगा। अभी देख लो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अच्छा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आता है ICSE के जैसे, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। तो क्या लिखता है, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। अभी स्पीकर का इलेक्शन मतलब हमारा जो सब टॉपिक है वो है इलेक्शन। अभी स्पीकर को कैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग नहीं, कैसे वो मतलब इलेक्ट होता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स own members soon after the newly elected house meets for the first time। अभी उसके इलेक्शन कैसा होता है, मैं आप लोगों को समरी में बता दे रहा हूँ एक स्टोरी जैसा। मान लो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है 2025 में, वहां पर अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी जीत गया तो फिर उस समय एक न्यूली सेशन होगा, एक फर्स्ट सेशन होगा, उसमें सब लोग डिसाइड करेंगे ये स्पीकर मतलब पुराना स्पीकर जो है वो रहेगा कि नया स्पीकर आएगा उसके जगह पर। फिर ऐसा बातचीत होता है, होकर वो लोग डिसाइड करता है कि ये स्पीकर बनेगा ना कि दूसरा स्पीकर उस जगह में रहेगा। जो स्पीकर जो पहले भी था वो भी रह सकता है अगर पार्टी चाहता है, जो मतलब विनिंग जो पार्टी है और जिसका मेजोरिटी ज्यादा है उसके ऊपर ही सब कुछ रहता है। ऐसे जो मेजोरिटी पार्टी जो जीतता है वहां पर मतलब लोकसभा के इलेक्शन उन लोगों के MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग वोट देकर स्पीकर बनाता है, मतलब स्पीकर को
कौन है अगला स्पीकर, नया लोकसभा का अगला स्पीकर कौन है, ये मतलब ये बन जाता है। सपोज मान लो अभी हम लोग किसी भी, पहले था सुमिता, पहले था हमारा सुमिता महाजन स्पीकर ऑफ द लोकसभा था। अभी हम लोग चाह रहे हैं वो नहीं रह सकता है, नया पार्टी फॉर्म हुआ है, तो फिर ये होगा नया इलेक्शन में जो पार्टी जीता है, जिसका मेजोरिटी पावर बहुत ज्यादा है, वो ही सिर्फ कर सकता है। अभी आ जाओ डिप्यूटी स्पीकर में। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर्स व्हेन द लेटर इज एब्सेंट। मतलब समझ लो डिप्यूटी स्पीकर होता है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना वाइस, मतलब अगर मॉनिटर नहीं आता है क्लास में, कुछ और भी होता है वाइस मॉनिटर, ऐसा वो तब उस मॉनिटर का रोल करते हैं। ऐसे ही अगर सपोज मान लो स्पीकर बाहर गया है कोई भी काम के लिए, तो फिर जो डिप्यूटी स्पीकर, जो स्पीकर खुद बना कर जाता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकसभा है वहां पर बैठेंगे स्पीकर के जगह पर, सिर्फ उस दिन के लिए, मतलब उस सेशन के लिए, बस यही चीज है। अभी क्या बोल रहा है, फंक्शन ऑफ द स्पीकर, रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। द बिजनेस ऑफ द हाउस, मतलब स्पीकर को अपना बिजनेस देखना पड़ता है हाउस में बैठकर। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी है, डिसिप्लिनरी फंक्शन भी है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज भी है। मिसलिनियस ये नहीं चाहिए, मतलब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आप काट सकते हो, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है, तो जानना बहुत अच्छा है जनरल नॉलेज के लिए आपका। तो फिर देखते हैं क्या बोल रहा है बिजनेस ऑफ द हाउस के लिए। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, ऑल स्पीच व्हाट दिस writer has written, given me a bad book. All speeches, and remarks are addressed to the speaker. All he allows time for discussion. The speaker interprets the rules of the procedures of the house. His decision in all the parliamentary matters is final. All bills passed by the speaker are signed by him before they are sent to the Rajya Sabha for his consideration or to the president for his absence. मतलब अगर आप मान लो अभी राज्यसभा लोकसभा में एक बिल पास हो रहा है, पास हो गया, उसका साइन देकर ही वो किंतु राज्यसभा में जाएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट जा सकता है राज्यसभा में, ऐसा नहीं है। अभी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है स्पीकर का देख लेते हैं। द स्पीकर रिसीव्स ऑल पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस, मतलब जो भी स्पीकर है वहाँ पर, मतलब लोकसभा का जो अभी करेंट स्पीकर है उसके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है कि उसके पास मतलब देश के और जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनका डॉक्यूमेंट्स सब वगैरह उसके पास है, और सिर्फ वही है जो डिसीजंस ले सकता है हाउस के ऊपर, मतलब लोकसभा के ऊपर सिर्फ वो स्पीकर ही डिसीजन ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है। अभी आ जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, राज्यसभा। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है? राज्यसभा का कॉम्पोजिशन है 250 मेंबर्स, मतलब यही है मैक्सिमम स्टेट। अभी राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर्स कैसे होते हैं? राज्यसभा दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स सच एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोसाइटी सर्विस। द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर 12 इन नंबर। अच्छा, 250 में से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, और वो भी स्पेशल केसेस के लिए, जैसे नॉलेज के अंदर आधार पर, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज के ऊपर सिर्फ 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है राज्यसभा के लिए। और 228 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट इन द यूनियन। Election: the representative of each state in the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of each state in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote। क्या बात, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। वन वोट, वन पर्सन वन वोट। जितने भी मतलब जितने भी हमारे इंडिया का अभी सिटीजनशिप है, मतलब 130 करोड़ से ज़्यादा, वो लोग वोट देकर इन लोगों को राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करता है।
अभी राज्यसभा के मेंबर का टर्म होता है 6 इयर्स, मतलब 6 सालों के लिए एक राज्यसभा मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। अभी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए राज्यसभा मेंबर्स को? सबसे पहले उसको इंडिया का सिटीजनशिप होना पड़ता है और उसको 30 एज होना पड़ता है, मतलब 30 इयर्स ऑफ एज। ये क्वेश्चन में मतलब आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स में इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। राज्यसभा के जगह पर वो लोग लिख देता है 25 और लोकसभा के जगह पर 30 लिख देते हैं। ऐसा मत करना है, ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा में आप जब तक 30 ईयर्स ऑफ एज नहीं होते आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। और बाकी सब चीज सेम है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए वगैरह वगैरह। सिर्फ 4 आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सेम है, सेम चीज। अगर आप गवर्नमेंट से चीट कर कर आप कुछ कर रहे हैं, ये सभी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एट द लास्ट, अभी जो चीज है ना लेजिस्लेटिव फंक्शंस वगैरह वगैरह, इतना चीज आपको नहीं जानना पड़ेगा। इलेक्टोरल फंक्शन, जुडिशियल पावर्स, वोट ऑन अकाउंट, ये सब नहीं जानना पड़ेगा। सिर्फ आपको थोड़ा जानना पड़ेगा मनी बिल के बारे में। अभी ये मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द लोकसभा ओनली आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा it is sent to the Rajya Sabha for its recommendation which it must make within 14 days। मतलब 14 दिन के अंदर ही ये होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं ये हो सकता है। द बजट, द पार्लियामेंट पासेस द यूनियन बजट, ये सब पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी ये चीज नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको सिर्फ ये सारी चीज याद करना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, मैक्सिमम स्टेट टर्म्स, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस, और कुछ जगह के मिनिस्टर्स, और राज्यसभा में कैसे स्पेशल केसेस के अंदर प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है राज्यसभा मेंबर्स के लिए। सिर्फ इतना चीज़ ही आपको जानना पड़ेगा। और एक चीज़, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, बस इतना ही। और जो साइड में जो बटन आ रहा है उसको आपको प्रेस करना है, हमारे सब नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम के आईडी है, उसको सिर्फ आपको जाकर फॉलो करना है। और कुछ अगर मैं कुछ ट्राई नहीं रहा हूँ, कुछ न्यू टाइप्स के वीडियो आएंगे, कुछ वाइंस वाले फनी वीडियोस भी आने वाले हैं। ये स्टडी का चैनल है, मैं स्टडी के बारे में बताऊंगा इस चैनल में। मेरा जो नया चैनल है उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। जैसे कुछ मजाक करना है वहाँ पर